بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرکزی جامع مسجد رضوان الایمان مینڈر کی تیسری منزل جو زیر تعمیر ہے اس میں ہم کھڑے ہیں اور دو موضوع زیر بحث جو چل رہے ہیں اس پر تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ ایک مسجد ہے اور ایک مدرسہ ہے۔ ہماری مسجد جو ہے الحمدللہ آج تیسری منزل چل رہی ہے اور اس مسجد کا ریکارڈ 1996 سے اس کی تعمیر شروع ہوئی اور یہ جو تیسری بار شروع ہوئی اور 1996 سے لے کے آج تک مفتی محمد ایوب صاحب کی زیر نگرانی مسجد کے نمازیوں نے مسجد کے گیٹ سے اندر مسجد کا تعاون کیا۔ دامن جوہری کے ذریعے لوگوں سے پیسے مانگے گئے اور نمازیوں نے وہ پیسے نذرانے ڈالے، جس سے یہ 2 منزلیں مکمل اور تیسری کی تعمیر شروع ہے جو ابھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں کسی بیرونی کسی تنظیم کا، حکومت کا، اوقاف کا یا کسی بھی باہر کے کسی آدمی کا یا کسی سیاسی پارٹی کا اس میں کوئی دخل نہیں بحیثیت پارٹی، بلکہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی لوگ نمازی ہیں، وہ اپنے فراخ دلی کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر مسجد کے اس بینک میں، مسجد کے خزانے میں، مسجد کے کھاتے میں وہ اپنے ہاتھ سے پیسہ ڈالتے رہے ہیں اور وہ آج تک بھی ریکارڈ موجود ہے۔ الحمدللہ مسجد کا ماحول جہاں تک جمعہ، عیدین اور پنجگانہ نماز پابندی کے ساتھ اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں اور ایک ہجوم ہوتا ہے نمازیوں کا، اور میرے خیال سے جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے کہ ہمارے پونچھ اور رجوری میں بلکہ جموں تک جمعے کے دن سب سے بڑی آبادی اگر نمازیوں کی جو ہے اجتماع ہوتا ہے تو وہ مینڈر کی مسجد میں ہوتا ہے اور یہ عام لوگوں کا ہے، ہر آدمی کی زبان پر ہے کہ یہ واحد مسجد ہے کہ جس مسجد کے اندر کی تعمیر صرف مسجد کے نمازیوں نے کی ہے، کوئی باہر سے پیسہ اس میں کسی کا نہیں لگا۔ ایک تاریخی بات ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی وہ تعمیر ہو رہی ہے، مگر دکھ کے ساتھ ہم یہ بات کہیں گے اس پرامن ماحول کے اندر، جبکہ مسجد کا پرسکون پرامن ماحول تھا اور ابھی تک پرامن ماحول ہے، مگر اس پرامن ماحول کو بگاڑنے کے لیے اس وقت اوقاف والوں نے جو ہمارے پاس ہمارا ایک عزیز واجد بشیر آل معروف ٹکو خان جو کہ دور کا نہیں بلکہ ہماری تحصیل کا ایک آدمی ہے، جب وہ آیا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، مگر اس کے جو کچھ اقدام مسجد کے تعلق سے ہوئے اس پر ہمیں 100 ہزار افسوس اور صدمہ ہوا۔ یہ صدمہ ہوا کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ مسجد کی تعمیر کے بارے میں سوچنا تھا، مسجد کے اندر پرامن ماحول قائم کرنے کے لیے سوچنا تھا، نہ کہ مسجد کا اکاؤنٹ بند کرا کے مسجد کی تعمیر بند کرا کے۔ یہ اچھا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک تو فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا الی آخرہ۔ یہ آیت پاک قرآن پاک کی نقال کے اس کا ترجمہ اور مفہوم دیکھ لیں کہ وہ آدمی جو مسجدیں بناتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، جو مسجد کی تعمیر بند کراتے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے جو ہمارا فرض بنتا ہے بیان کرنا۔ الحمدللہ یہ مسجد پرامن تھی اور ہے، بلکہ یہی نہیں بلکہ اس مسجد کے جتنے امام گزرے ہیں پرامن گزرے ہیں۔ مجھ سے پہلے برادر اکبر مولانا مفتی ایوب صاحب جو ہیں ان کی وفات پر مسلمانوں نے نہیں بلکہ مینڈر کے ہندوؤں نے پورے بازار میں گھوم کے پھر کے ریڈیو بھی بند کی اور انہوں نے کہا کہ آج مینڈر کی چھتری اٹھ گئی، تمہیں شرم نہیں آتی، تم ریڈیو کھولے ہو، بند کرو، آج مفتی صاحب کے جنازے پہ چلو۔ اور یہاں کے سارے جتنے ہندو تھے بڑے بڑے سیدھا حضرات، مندر کے جو پجاری پنڈت جی تھے وہ بھی گئے اور جا کر ان لوگوں نے مفتی صاحب کے اس چارپائی کو بوسے دیے اور روئے، چھم چھم روئے، کہنے لگے یہ مفتی صاحب وہ تھے مسجد کے امام تھے مگر یہ ہمارے سروں کی چھتری تھی اور ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے۔ ہندو مسلم بھائی چارہ اس شخص نے قائم کیا رہا اور جب بھی ہمارا کوئی بیمار مرد عورت جاتے ان کے پاس ان کی پھونک پھانک تعویذ بتی ہم ہر وقت ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ اتنا پورا امن ماحول تھا اور ہندو مسلم بھائی چارے تک بھی ہم نے یہ قائم رکھا اور آج بھی قائم ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ مسجد ایک پہچان ہے امن کی، امن کا گہوارہ ہے اور ایک مرکز ہے ہمارا امن کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مرکز کے اندر
अमन ही रहे, ये खलल अंदाजी जो है ये नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मस्जिद के ताल्लुक से मैं गुजारिश करूंगा औकाफ वालों से कि इसके ऊपर नजरसानी करें, हमारा अकाउंट खोल दें, बेहतरी इसी में है। और अगर आप अमन चाहते हैं, अगर आपकी नीयत खराब है तो फिर वो है इन्नमल अमाल बिन्नियात, जैसे किसी की नीयत होगी ऐसे वो फल पाएगा। नंबर 2, जहाँ तक मदरसे का ताल्लुक है, ये हमारा मदरसा जो है इसमें इसी मस्जिद के इमाम मुफ्ती गुलाम सूर साहब ने जब देखा कि मस्जिद के पास यहाँ मदरसे की जगह कोई नहीं, तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुंछ के पास दरखास्त दी और 10 मरले जगह बस स्टैंड पर उन्होंने अलाट करवाई, और वो अपने नाम पर नहीं बल्कि दरसगाह के नाम पर, दरसगाह अहले इस्लाम के नाम पर वो अलाट हुई और बाकायदा रिकॉर्ड के अंदर अमल दरामद हुआ, और 1980 से लेकर आज तक दरसगाह के नाम पर वो रिकॉर्ड चल रहा है। और उसमें मुफ्ती अय्यूब साहब ने और हमने मिलकर वहाँ 3-4 शेड बनाए और बाकायदा टीन वाली इमारतें की, उसमें वो गर्मियों में भी सड़ते रहे, कई साल वहाँ हमारा मदरसा रहा, समझे नहीं। अब मैं ये बात ये गुजारिश करूंगा कि जब उस हमारे मदरसे के साथ कुछ लोगों की नीयतें खराब हुई, फिर हमने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में हमने उलमा बुलाए, नमाजी बुलाए, सियासतदान बुलाए। आज भी वो रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस रिकॉर्ड के अंदर हमने एक तजवीज की कि ये मदरसे की जगह है, मदरसे ही की रहेगी, किसी जाती मौलवी की नहीं होगी, ना मस्जिद के इमाम की बनेगी, ना मस्जिद के किसी कमेटी मेंबर की बनेगी, बल्कि ये अहले इस्लाम है, अहले इस्लाम ही रहेगी और बना में दरसगाह ही रहेगी, यहाँ कुरान हदीस ही पढ़ाया जाएगा। जब भी बनी तामीर हुई, मदरसे की तामीर होगी। वो एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उस रेजोल्यूशन के ऊपर हमारे चीदा हजरात आज भी मेरे पास मौजूद है। सरदार रफीक हुसैन खान का दस्तखत उसमें मौजूद है, उनके बेटे वसीम खान का दस्तखत मौजूद है, हमारे एक्स MLC इमदाद खान का उसमें दस्तखत मौजूद है, और सखी मैदान वाले सरदार मुमताज खान का उसमें दस्तखत मौजूद है। जो सियासी में जिनके आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े सीधा तमाम पार्टियों के जो अहले ईमान लोग दर्द रखने वाले, उनके दस्तखत उस फाइल पर मौजूद है, मेरे पास वो असल फाइल मौजूद है, समझे नहीं। ये ना कहना कि भाई ये किसी मौलवी की विरासत है, कोई किसी मौलवी की विरासत नहीं, बल्कि वो दरसगाह पहले भी दरसगाह थी, आज भी दरसगाह है, और उसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों के दस्तखत मौजूद है उस रेजोल्यूशन के ऊपर। वो रेजोल्यूशन ये बताता है कि ये किसी मौलवी की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये दीन की प्रॉपर्टी है, दरसगाह की चीज है, हमेशा दरसगाह ही की रहेगी। अब अगर कोई आदमी उसको आकर हमारे महकमा माल में दखल देकर और हमारे दरसगाह के रिकॉर्ड को वहां लिखे बराए तामीरात दुकानात, ये गैर शरई है और नाजायज है, इसलिए कि बराए दरसगाह वो अलाट है, दरसगाह ही रहेगी, यहाँ औकाफ की दुकानें कतई नहीं बन सकती, मेरी दुकानें नहीं बन सकती, किसी मस्जिद कमेटी के सदर की या किसी मेंबर की दुकान नहीं बन सकती, ना कानूनन कुरान हदीस की रोशनी में बन सकती है। हमें हुकूमत ने जगह दी है, डीसी साहब की अलाटमेंट से हुई है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है, और हम उस मसले में उस वक्त के डीसी साहब को और हुकूमत के मशकूर हैं, उन्होंने हमें दरसगाह के लिए जगह दी है, हम तो उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने नेकी लगाई, मगर वो हुकूमत वाले नेकी लगाए और हमारे औकाफ वाले आके उसके अंदर अगर वो सुराख करें, उसको आकर तो नकबजनी करें, बड़े अफसोस की बात यह है। और फिर अगर उसको कोई आदमी जाती तौर पर अपनी अलाटमेंट कराए, उसकी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उसकी तो जवाब ही कोई नहीं है, समझे। ये चीजें सारी जब मंजर आम पर आएंगी तो मेरे ख्याल से ये इंतशार ही इंतशार होगा। मैं ये इस मदरसे के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, जब तक वो हमारा वहाँ मदरसा बनता, जामे मस्जिद वालों ने हमारी मस्जिद के करीब जो दुकानें मस्जिद कमेटी ने चंदे पर बनाई हैं, और उन दुकानों की छत पर मदरसे की कुछ कमरे बने हैं जिसमें वो हमारे बच्चे रहते हैं, लगभग 60-70 बच्चा जो लंगर वाला है, 3 टाइम का खाना उनको मिलता है, और फिर यहाँ तक उनकी तालीम के लिए बंदोबस्त है, उस्ताद बाकायदा मुकर्रर हैं। और आज तक हमारी जामे मस्जिद मेंढर या हमारी दरसगाह के बच्चों से कोई आवाज ना मुल्क के खिलाफ निकली, ना हुकूमत के खिलाफ निकली, और ये एक रिकॉर्ड है हमारा, ना हम कभी हुकूमत के खिलाफ बोले। हुकूमतें आती रहती है, जाती रहती है, बनती रहती हैं, और हमारा एक आजाद माहौल है मस्जिद और मदरसे का। हम चाहते हैं कि ये आजाद माहौल है, आजाद ही रहे, और इसलिए कि जो बाहर से ऑफिसर आए, किसी भी पार्टी का आए, कोई भी जिम्मेदार डीसी साहब आए, एसपी साहब आए, हमारे SHO साहब आए, SDM साहब आए और देख के उनको खुशी हो कि एक अच्छा माहौल है,
समझे नहीं। बल्कि यहाँ जब भी कहीं हमारे हिंदू भाइयों के साथ कोई जाति अगर कहीं बाहर हुई, जैसे रजौरी में हुई थी, तो ऐसा कि मुझे पुलिस से फोन आया, एसडीपीओ साहब का फोन आया, आपने सदारत करनी है, आपने वो जाना है। मैं गया और बाकायदा हमने एक तारीख चलाई और हमने और हिंदू भाइयों के हक में हमने पूरे दिन की बंद की कॉल दी और पूरा शहर बंद रहा। हम ऐसे नहीं है, ये जो अमन में खलल डालने वाले आदमी हैं वो फितने वाले हम नहीं। अल्लाह के फजल करम से हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे, हमारी तहसील में खुसूसन अमन रहे, ताकि जो हमारा मैसेज जाए वो अच्छा मैसेज जाए। हम आगे भी एक दफा बदनाम हुए, कुछ लोगों ने यहाँ हड़तालें की और जबरदस्ती हड़ताल की और फिर जाके उसमें 3 बंदे जो है हमारे शहीद हो गए। मगर उसमें भी एक बात मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिनकी जैसी नीयत थी, देखो ना, उसमें बेगुनाह बच्चे मारे गए और उन लोगों को बाद में शर्मसारी हुई जिन्होंने ये तहरीक अंदर से चलाई और उन्होंने हमारे मुफ्ती साहब के खिलाफ नारे लगाए, एसडीपीओ के खिलाफ नारे लगाए। और फिर अवाम मैंने देखी कि जो अच्छे लोग थे, उस दिन भी किसी मेंढर के मुसलमान ने किसी हिंदू की दुकान पर पत्थर तक नहीं मारा, किसी मुसलमान को ठोकर तक नहीं मारी, तू करके नहीं कहा। मैं कहता हूँ ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारा अगर था तो ये कुदरती एक मेहरबानी है, ये कायम रहना चाहिए। और ये हमारे मस्जिद और मदरसे का जो एक माहौल है, मरकज का मदरसा है, मस्जिद की मस्जिद है, इसलिए इसको पूरा अमन रखा जाए। मैं इसलिए डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, आप डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हो और इस मसले को सीरियस लो, बाकायदा औकाफ वालों को बुला के ये कहो कि जब वो अपने तौर पर मस्जिद वाले निजाम चला रहे हैं, आज से 60-70 साल तक आपने मस्जिद पर कोई रुख नहीं किया, कोई एक पैसा नहीं दिया, अब आपको क्या हक हासिल है कि आप छापा मारें और आकर यहाँ आके तसल्लुत जमाए? डीसी साहब को इख्तियार है, वो पूछ सकते हैं। हाँ, डीसी साहब अपनी टीम भेजें, आकर कोई बिला शिकवा कोई शक शकूक कहीं से आता है, बैठ के बात करें। हर कानूनी दायरे के अंदर रहकर बात करने के लिए हम कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। मगर अगर कोई ये कहे कि हम सीना जोरी से कोई काम करेंगे तो ये खिलाफ कानून होगा, खिलाफ अखलाक होगा, हम लोग इसको मेंढर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस माहौल को, पुरअमन माहौल को कायम और दायम फरमाए। और ये जिन लोगों ने ये सिलसिला किया है, मैं बहादुर तरीके से जिम्मेदार हजरात से गुजारिश करूंगा जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील के हैं कि वो औकाफ वालों से कहें ये जो हमारे अकाउंट बंद किए हैं, हमारे मदरसे के बंद होने का खदशा है, बंद होगा नहीं इंशाअल्लाह। समझे नहीं, जो पैसा हमारा मुंतमिल किया है, अगर वो पैसा दूसरी